بدلا جا سکے اور اس طریقے سے بدلا جا سکے کہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکیں. آپ کی اور عمران خان کی مقبولیت سے گھبرائے ہوئے ہیں اس وقت اوپوننٹ. لیکن ہم نے بڑے مربوط طریقے سے جذبات کی بنیاد پر صرف نہیں، قانونی دلیل کی بنیاد کے اوپر جہاں جہاں ہمیں نظر آتا ہے حلقہ بندی غلط ہوئی ہے، اور اس کے 6 اصول ہیں جس کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندی کی جاتی ہے، وہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی شیئر ہو گئی تھی. میرا اب سرکولر بھی نکل گیا ہے، وہ انصاف.p کے ویب سائٹ پہ بھی ہے، تمام تنظیموں کو بھی چلا گیا ہے. جہاں جہاں ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے کو دیکھنا ہے. حلقہ بندی آپ کی جو لگی ہوئی ہے اس وقت، اس کو دیکھنا ہے. اگر اس میں کوئی بھی چیز ایسی نظر آتی ہے جو آئین قانون کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے اس کو درست کروانے کے لیے اپلیکیشن بنوانی ہے. 15 جون تک، صرف ایک ہفتے کا ٹائم ہمارے پاس ہے اس وقت. 15 جون تک آپ نے ریاض فتیانہ صاحب یہاں الیکشن سیل ہمارا ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس پہنچانی ہے اپنی جو آپ کی اپلیکیشن یا پٹیشن بنے گی، تاکہ ہم نے قانونی ماہر جو یہاں پر لیے ہیں وہ آپ کی پٹیشن کو دیکھ سکیں اور آپ کی مدد کر سکیں، تاکہ وہ بہترین ٹھوس قانونی بنیاد کے اوپر وہ آپ کی پٹیشن فائل کی جا سکے. جہاں جہاں پر بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حلقہ بندی بدلنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کام بہت ضروری ہے جی. دوسرا کام جو اس وقت شروع ہوا ہے، آپ نے بھی بہت سنا ہوگا، آپ میں سے کچھ اپنے لوگوں کا ذاتی تجربہ بھی ایسا ہے کہ ووٹر جو ہے ان کا ووٹ جہاں پر رجسٹر تھا وہاں سے بدل دیا گیا ہے. اس کی ایک تو آئینی وجہ ہے، قانون بدلا تھا 2017 کے اندر، لیکن بہت سی ہمیں تبدیلیاں جو پتہ چل رہی ہیں اس کا اس آئین قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ہی گھر کے لوگوں کا 6 مختلف جگہ پر ووٹ بانٹ دیا گیا ہے، اور اسی بہت ساری ہم باتیں سن رہے ہیں. تو وہ میں نے سوشل میڈیا کو ٹیم کو کہا تھا، ہم نے باقاعدہ ایک فارم بنا کر اس کو کر دیا ہے. میں بھی ابھی تھوڑی دیر بعد اس کو ٹویٹ کر دوں گا اپنے اکاؤنٹ سے بھی. آپ نے اس کو پھیلانا ہے، اپنے واٹس ایپ گروپس پہ ڈالنا ہے. اور دوسرا جو کام کرنا ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ممبر سازی کا کام. اس وقت جس طریقے سے سب مانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت، عمران خان کی مقبولیت اپنے عروج پر ہے، یہ ٹائم ہے کہ ہم گراؤنڈ پر جا کر لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کو رجسٹر کریں، ان کو تحریک انصاف کا ممبر بنائیں. اس کے لیے ہم جو ہے ممبرشپ کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں. آج اسلام آباد میں خود جا رہا ہوں ایک کیمپ کے اندر، وہاں سے ہم ممبر سازی کیمپین کا آغاز کریں گے. فوزی ارشد میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا پرانا UC ہے، ان کی F7 سے ہم شروع کریں گے. اور یہ تمام پاکستان میں ہر UC کے اندر ہم نے آرگنائز کرانا ہے. جتنی تنظیمیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سرکولر پہلے نکل چکا ہے، یہ ذمہ داری آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، اور اسی ہفتے کے اندر اندر ہم نے کیمپین شروع کرنی تھی. ہر UC کے اندر ممبر سازی کے کیمپ لگنے ہیں. اس کیمپ میں آپ نے ممبر بھی بنانا ہے، اور جب وہ آئے گا ممبر بننے کے لیے تو اس کی ووٹ بھی چیک کرنی ہے. اور اگر کوئی ایسا ہے جس کا ووٹ رجسٹرڈ نہیں ہے تو ہم نے وہ بھی اس کی ہیلپ کرنی ہے. یہ سارے کام اس ممبر سازی کے کیمپ کے ذریعے کرنے ہیں. اور یہ کام کرنا ابھی کیوں ضروری ہے، اور یہی جون کا مہینہ اس کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت، یہ غیر فطری حکومت، یہ حرام کے پیسے پر ضمیر خرید کے بنی ہوئی حکومت، یہ بیرونی سازش اور مداخلت سے بنی ہوئی حکومت اپنے وزن کے نیچے خود گرنا شروع ہو گئی ہے. یہ زیادہ دیر تک یہ معاملہ چلنے نہیں والا، اس لیے آپ نے الیکشن کے لیے تیار رہنا ہے. آپ نے اس الیکشن کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ جیسے میں پہلے 2-3 دفعہ بول چکا ہوں، ووٹ اس وقت عمران خان کا ہے. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، قوم اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اور اگر اب کہیں پہ ہم سیٹ ہارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہماری نالائکی اور ہماری کمزوری ہوگی. اس کا مطلب ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے وہ تیاری نہیں کی، وہ حلقہ بندی ٹھیک نہیں کروائی جس کو ٹھیک کروانے کی ضرورت تھی، وہ ووٹ جو غلط ہو گئے تھے ان کو ٹھیک نہیں کروایا ہے، ان لوگوں تک نہیں پہنچے جو عمران خان کے لیے ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں. اور بالکل ٹائم نہیں دینا. یہ مت سمجھنا، آج کل آپ کو بہت سننے کو ملے گا، وہ جی حکومت نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ تو جی ادھر بیٹھے ہوئے، اس جھانسے میں مت آنا. یہ گر رہے ہیں، یہ اپنے ملبے کے نیچے دب رہے ہیں. تیاری پکڑنی ہے.
इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान अपने लीडर इमरान खान के साथ जन्म पाएगा। मैं एक चीज़ भूल गया था सब लोगों का शुक्रिया अदा करना। एक तो मैं केपी हाउस और केपी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपना लोन दिया, क्योंकि बाकी जगह हमें नहीं मिल रही थी। ऑल्दो ये फंक्शन पार्टी ने ख़ुद पे किया है, इसके हर चीज़ की पेमेंट हम पार्टी से कर रहे हैं। इसमें कोई हुकूमत का कोई पैसा नहीं लगा सिवाय इस ग्राउंड के। दूसरा, मैं जो मेरी टीम जिसने ये मुमकिन किया इतने शॉर्ट नोटिस पे, जिसमें एजाज भट्ट साहब हैं, राशिद साहब हैं और नेहा हैं और बाकी अपना नुमान है और हमारी बाकी जो सोशल मीडिया की टीम है और मीडिया की टीम है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा न्यूली इलेक्टेड नायब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब, और यहाँ पर आसिया अमजद साहिबा के लिए पुरजोर तालियां। वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी ये अभी बोल नहीं सकती हैं, इनकी स्पीच थेरेपी चल रही है, इलाज इनका चल रहा है, उसके बावजूद ये यहाँ पे पहुंची हैं। आसिया अमजद साहिबा, जिन्हें पंजाब असेंबली के अंदर नून लीग के गुंडों ने और जो इन पर हमला किया था, और अब इनकी स्पीच थेरेपी चल रही है। अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। आसिया, आप मुजाहिद हैं। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब, सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब, नेशनल काउंसिल के मेंबर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब पार्टी के सिर्फ चेयरमैन नहीं हैं, इस पार्टी का चेयरमैन होना बहुत बड़ा एजाज़ है। इमरान खान साहब इस पार्टी के बानी चेयरमैन हैं। चेयरमैन में और बानी चेयरमैन में बहुत फ़र्क होता है, और जो सियासत को समझते हैं वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बानी चेयरमैन का क्या मतलब है। यानी कि वो शख्सियत जिसने एक नया पौधा लगाया, वो शख्सियत जिसने एक टू पार्टी सिस्टम के अंदर जुर्रत की टू ब्रेक द मोल्ड, और वो आसान नहीं है। दुनिया की सियासी तारीख इस बात की गवाह है कि टू पार्टी सिस्टम इंग्लैंड में, जो कि डेमोक्रेसी की वैल्यूज बहुत गहरी है, वहां नहीं टूट सका। कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स आए, लेकिन महदूद। अमेरिका, जो बड़ा फख्र करता है डेमोक्रेसी की पर, आज भी वहां तीसरी कुव्वत बनने की लोगों ने कोशिश की, कामयाब ना हो सके। रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स, और बहुत सी मिसालें दे सकता हूं, टाइम नहीं है। पाकिस्तान एक वाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसी मिसाल है तहरीक इंसाफ, जिसने टू पार्टी सिस्टम को तोड़कर अपना वजूद कायम किया, और उसकी वजह इमरान खान है, इसका नजरिया है, इसका विजन है, इसकी पहचान है। आज पहचान तो इमरान खान की पहले भी थी। बहसियत एक इंटरनेशनल एथलीट, बहसियत एक फिलैंथ्रोपिक वर्कर, इनकी पहचान थी। लेकिन सियासत में इन्होंने अपनी पहचान बड़ी मुश्किल से करवाई, और 26 साल का सफर वो खुद जानते हैं कितना कठिन था वो सफर, और कितना इनको तंजिया जुमले सुनने पड़े, कितने जवाब मिले, और कितने नशेब व फराज से ये दो चार हुए। वो पूरी तारीख जो है और वो जो लम्हात हैं वो उनके सीने में नक्श हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने वो कर दिखाया जो कि आसान न था। आज पाकिस्तान को पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा दे रहे हैं, दे चुके हैं, और वो है एक ऐसी जमात जो वफाक की सोच रखती है, एक ऐसी जमात जिसकी
अहमियत, अफादियत, नजरिया पाकिस्तान के हर सूबे में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में फैल चुका है, और जिसका कारकुन पाकिस्तान के शहर में, देहात में फैल चुका है, पैदा हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं, 2013 में आपने एक अरूज देखा और फिर आपने इंतखाबात के नताइज देखे। इसमें कोई शक नहीं कि 2018 में आपने एक नई जद्दोजहद देखी, और उस जद्दोजहद ने आपको पंजाब में, और आपको खैबर पख्तूनख्वा में, और आपको मरकज़ में, और आपको आज़ाद कश्मीर में, और आपको गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का मौका इनायत किया, और बलूचिस्तान में कुलूशन की हद तक, और सिंध में एक मौसर अपोजिशन की हद तक आपने एज अ पार्टी जन्म लिया। मैं समझता हूं कि आज तहरीक इंसाफ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, और वो है मरहला एक अवामी जमात जो नीचे से उठी है। जमातें, अगर आप जाएं इलेक्शन कमीशन में तो आपको 200 या 190 के करीब रजिस्टर्ड जमातें दिखाई देंगी, लेकिन जो मानी रखती हैं जमातें, उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। कुछ जमातें ऐसी होती हैं जो ऊपर से आती हैं, लेकिन वो देरपा नहीं होती, और उनकी उम्र जो है महदूद होती है। कुछ जमातें होती हैं जो नीचे से जन्म लेती हैं, और जब वो नीचे से जन्म लेती हैं, अगर उनको मुखलिस क़यादत मिल जाए और क़यादत के साथ नज़रिया जुड़ जाए, तो वो जमातें रहती हैं। कांग्रेस बनी हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, आज भी मौजूद है। बहुत सी जमातें तहरीकों में शामिल होती हैं, आज़ादी की तहरीकों में शामिल होती हैं, जैसे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में किरदार अदा किया, और इंशाअल्लाह मौर्रिख इस बात को लिखेगा कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी में इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने किरदार अदा किया। वो आज़ादी जो हम गुर्बत से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम मुफलिसी से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम जहालत से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम बैरूनी कर्जों से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम बाहर की स्पॉन्सर्ड हुकूमतों से चाहते हैं, उस आज़ादी की बुनियाद इमरान खान रख चुके हैं। और इस तहरीक में आप खुशकिस्मत हैं कि आप नेशनल काउंसिल के मेंबर्स, तारीख इस बात की गवाही देगी कि आप कह सकते हैं कि जब हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद थी तो मैं भी था, मैं भी था, मैं भी थी। ख़वातीन भी कह सकती हैं और मर्द भी कह सकती हैं। ये एक तारीखी लम्हा है जिसका हमें जिसको हरगिज़ हम ज़ाया नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता यह ज़ाया हो गया तो पाकिस्तान की आवाम और कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। एक बात 1 मिनट के लिए और करना चाहूँगा। आप पर एक इम्तहान आया है, कई इम्तहान आए हैं अल्लाह के फजलो करम से। यहाँ वो लोग बैठे हैं जिन्होंने 126 दिन का इम्तहान इस डी चौक में पास किया हुआ है, धरने दिए हैं, मारे खाई हैं, शेलिंग खाई है। और मैं सलाम पेश करता हूँ। लोग कहते हैं कि 25 मई को कहाँ थे लोग। मैं ईमानदारी से कहता हूँ 25 मई को जिन हमारी ख़वातीन ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जिनकी घरों की दहलीज फलांगी गई, जिनके गाड़ियों पर पथराव और डंडे बरसाए गए, जिनके बच्चों पर शेलिंग की गई, नन्हे बच्चों पर जो शेलिंग की गई, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करना चाहूँगा, उनको सलाम पेश करना चाहूँगा। और मैं ये भी अर्ज करता चलूँ, अगर जो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ लोग निकालने में कामयाब दिखाई नहीं देती, तो मैं आज पार्टी के इमरान खान के कारकुन की हैसियत से कहता हूं, शहबाज शरीफ और सनाउल्लाह कंटेनर हटा दो और गिरफ्तारियां हटा दो, और फिर देखो लग पता जाएगा। इस्लामाबाद जो हमारा आईनी कानूनी हक है, उस हक की खातिर हमारे कारकुनों को यहां जमा होने दो और अपना माफी और ज़मीर बयान करने दो, तो पता चल जाएगा कि कहां खड़े हैं आप और कहां आपकी अवामी हैसियत आज क्या है, क्या पजीर आई है आपकी लोगों में। आपने इन 2 माह के अंदर
मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने लोगों का जीना दो भर कर दिया, और 10 तारीख को जो एक और क़यामत टूटने वाली है उसके लिए भी आपको तैयार होना होगा, और आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। और मेरा आखिरी नुक्ता है कि पंजाब में एक मैदान लगने वाला है, लग चुका है, दरखास्तें जमा हो चुकी हैं, और 20 हलकों में पंजाब की जो लोटे थे वो गए, और वहाँ अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मेरी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, नेशनल काउंसिल के जितने मेंबरान हैं, आप उन 20 हलकों को आइडेंटिफाई कर लें जहां आपका असर है। आप वहां कैंडिडेट को ना देखें, इमरान खान को देखें। वहां आप कैंडिडेट को ना देखें, वहां किसी जात को ना देखें, वहां बल्ले के निशान को देखें, और वहां बल्ले की कामयाबी के लिए और इमरान खान की जो है सियासी अजमत के लिए आज खुद वॉलंटियर करें कि मेरा वोट नहीं है, मैं सपोर्ट कर सकता हूं। मैं अगर वहां मेरी बिरादरी नहीं है तो मैं आपको पैम्फलेट बनवा के दे सकता हूं, मैं आपको झंडा पहुंचा के दे सकता हूं, मैं आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया कर सकता हूं, मैं पोलिंग डे पे आपकी पोलिंग की निगहदाश्त कर सकता हूं, मैं किसी को खाना पहुंचा सकता हूं। ये है जब इस जज्बे से तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह उतरेगी मैदान में, तो इंशाअल्लाह 17 जुलाई को एक नया नतीजा होगा, और उस नतीजे की बुनियाद पर बनेगी इमरान खान की 2/3 अक्सरियत की तहरीक इंसाफ की हुकूमत। शुक्रिया जी। इमरान खान साहब को हमेशा अल्लाह ताला का साथ रहा, और आज जितने इमरान खान साहब आज जितने अवाम में मकबूल हैं, 26 साल तहरीक इंसाफ के इतने मकबूल नहीं थे जो आज इमरान खान साहब की मकबूलियत है, और अल्लाह ताला ने आपको आप पे ख़ास करम किया है। और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब आप इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर वापस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आपके पुरज़ोर इस्तकबाल में न्यूली इलेक्टेड वंस अगेन चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। शुक्रिया शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ से, आराम से आराम से आराम से। बस अच्छा जी, मैं जी आज इन इलेक्शंस हमें पता है कि ये जल्दी के इलेक्शंस हैं, ये वो इलेक्शंस नहीं जो हम करवाना चाहते हैं पार्टी में, और इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए हमें ये एक फास्ट ट्रैक पे इलेक्शन करवाना पड़ा। लेकिन मुझे इसमें भी यकीन है कि हमारे इस इलेक्शन के बाद जो ऑपोजिशन है हमारी, राजा रियाज से बेहतर ऑपोजिशन है जो कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, इसमें भी हमारी बेहतर ऑपोजिशन है। अच्छा जी, मैं सुने मेरी बात। देखिए, मेरा 26 साल पहले जब मैंने ये पार्टी शुरू की तो मेरा हमेशा आइडियल ये था कि ये एक इदारा बनेगा, ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, फैमिली पार्टीज़ हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज़ की वजह से। क्योंकि दो सिस्टम्स हैं, एक है बादशाहत, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाहत को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाहत में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया, लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी एक किस्म की बादशाहती थी।
जिधर कोई मेरिट नहीं था। यानी आप ये देखें, 2 ख़ानदान हैं पाकिस्तान में पिछले 60 साल में, आधा वक्त मिलिट्री की गवर्नमेंट थी और आधा वक्त ये 2 ख़ानदान की हुकूमत थी। तो ये हमारा तो सिर्फ 3.5 साल थे जिसमें इन्होंने इतना शोर मचाया कि मुल्क में तबाही होगी। असल में तो इनके दौर की थी। तो सुने ज़रा, पार्टी हमारी इदारा तब बनेगी जब हम एक बेहतरीन किस्म के इलेक्शंस करवाएंगे पार्टी में। और इलेक्शंस का मतलब ये कि एक मेरिट के ऊपर एक वो लीडरशिप जो लोग हमारी मेंबर्स चाहेंगे ऊपर आए। तो ये एक हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए अभी तक। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2013 के इलेक्शन से पहले किया। वो बदकिस्मती से वैसा इलेक्शन नहीं हुआ जो हम चाहते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाती सही माने में। तो वो हमें बड़ा मुश्किल लगा, हमें मसले आए मेंबरशिप के सारे, बड़ा 8-9 महीने का वो एक प्रोसेस था। फिर हमने दूसरी वक्त कोशिश की और हमने तस्लीम नूरानी के नीचे पूरा एक इलेक्शन सेल बनाया, बड़ा पैसा भी एलोकेट किया। और जो सिस्टम चाहते थे हम, असल में फ्यूचर है ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शंस। ये आप देख लेंगे दुनिया में एंड में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शन होगा जिस तरह टेक्नोलॉजी जा रही है। तो हमने प्रीएम्प्ट किया इसको, कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सिस्टम सही माने में बना नहीं। लेकिन ये मेरी आप सबसे वादा है कि जैसे ही हमारी पहली अपॉर्चुनिटी होगी, तैयारी अभी से हम कर रहे होंगे, हमने इस पार्टी में इलेक्शन करवा के मेरिटोक्रेसी लेके आनी है। वो सिर्फ जब एक इलेक्टरल प्रोसेस ठीक होगा तभी मेरिटोक्रेसी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता था। एक अब अपनी पार्टी को और आसिया, आपको ख़ास मैं मिलने भी आसिया को गया था, हमारी ख़वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पंजाब असेंबली में भी। और जिस तरह हमारी ख़वातीन ने डी चौक पे वो पहुंची और जिस तरह वो शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनको आज सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा इस तरह औरतों को और बच्चों के में इस तरह की टेयर गैस शेलिंग मैं सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में होगा। क्योंकि हमारा एक माशरे में ख्वातीन की ज़्यादा इज्जत है। मैं वो पाकिस्तानी कह रहा हूँ जिसने सारी दुनिया देखी है। हमारे माशरे में और इस्लाम के कल्चर में ख्वातीन की बहुत पहले से ज़्यादा इज्जत है। और हमने कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि पुलिस, हमारी अपनी पुलिस और रेंजर्स, और सामने देख रहे हैं कि औरतें बच्चे और वो उनके ऊपर इस तरह की बेदर्दी से शेलिंग करें। मुझे कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये भी अपने मुल्क में ये देखूंगा। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मार्शल लॉ के अलावा कभी किसी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह का पुलिस का जो रवैया था, जिस तरह उन्होंने रात के लोगों के घरों में घुसे, पता था औरतें हैं वहाँ, और जिस तरह उनका औरतों से रवैया था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में ये होगा। और एक ऐसा खौफ फैलाया गया। और वो खौफ क्यों फैलाया गया? क्योंकि एक पहले बैरूनी साजिश के तहत एक नाजायज, एक करप्ट, वो लोग जो 30 साल से करप्शन कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस थे, उनको ऊपर मुसल्लत किया गया। और फिर जब देखा कि अवाम खड़ी हो गई है तहरीक इंसाफ के साथ, और मैं वाकई आपको कह रहा हूं कि मैंने कभी भी इतने बड़े जलसे नहीं देखे, मैंने कभी इस तरह की पब्लिक को निकलते नहीं देखा। जो खुद पब्लिक निकली जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, खुद पब्लिक निकली, मैंने कभी ऐसे पाकिस्तान में नहीं देखा। और दूसरी चीज कि जब खौफ आ गया, इन्होंने जब देखा पब्लिक निकली है, तो जब हमने ये एक पुरअमन एहतजाज था, हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई। फजल रहमान ने की, उसने किया, बिलावल ने किया महंगाई मार्च, 4 रुपए तब बड़ा था पेट्रोल, और उसने महंगाई मार्च कर दी। हमने तो किसी को नहीं रोका, हमने तो कोई कंटेनर्स नहीं रखे, पुलिस से इस तरह नहीं दहशत फैलाई, हमने तो नहीं किया, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है इस पाकिस्तान की तारीख में। हमने ना कोई मीडिया को कुछ किया,
फेक न्यूज़ के खिलाफ हमने बात की। वो तो कोई भी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर आप फेक न्यूज़ के ऊपर बड़ा हैवी फाइन्स हैं, लाइबल लॉज हैं, वहाँ हैवी फाइन्स हैं। बल्कि यहाँ के हमारे एक दो लोगों ने इंग्लैंड में जाके केसेस जीते हैं। तो यहाँ स्वाय फेक न्यूज़ के ऊपर हमने ना कोई मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस थी। आज देखिए मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है। वो जो 4 एंकर्स हैं उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, और वो मैं उनको सलूट करता हूँ, वो हीरोज हैं। वो खड़े रहे अपने मौक़िफ़ पे और उन्होंने स्टैंड लिया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि देखें, सहाफ़त हर एक तो होता है ना जी कि आज़ादी राय और सहाफ़त को बड़ा उठाया जाता है। हर चीज़ में पॉलिटिशियंस में अच्छे बुरे होते हैं, सहाफ़ी अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन जब एक क्राइसिस आता है जिस तरह ये आया और जो प्रेशराइज किया गया, मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश की गई, उसके अंदर इमर्ज किए हीरोज़। और ये 4 जो सहाफ़ी जो खड़े हुए हैं और जो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे हैं, इसको ये कौम का असासा है। जो असल जर्नलिज्म होती है वो कौम के लिए बहुत बड़ा असासा होता है। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है ये एसेट है कौम के। तो उसके बाद जो इन्होंने जब ये तशद्दुद किया और सब कुछ किया, डराया, क्योंकि ये नाजायज़ हुकूमत को अब क्या इन्होंने, इनके तरीके क्या थे? एक तो पहले साजिश हो गई, फिर इन्होंने अपनी ये सारी पार्लियामेंट को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करके रख दिया। एक आदमी जो इनकी टिकट लेने लगा उसको उन्होंने ऑपोजिशन लीडर बना दिया। इसका मतलब पार्लियामेंट ही खत्म होगी, जिसमें ऑपोजिशन ही नहीं, वो पार्लियामेंट क्या है? उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन को संभाल लिया। इलेक्शन कमीशन पहले इनके साथ थी। अब ये क्या करेंगे कि इनका सिर्फ एक नाजायज काम को जायज करवाने के लिए सारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन, किसी को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन पे। जो इन्होंने हल्का बंदियां की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, मैलिफाइड इंटेंशन से की, किसी को फेथ नहीं है। और सबको पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। सो सारी पाकिस्तान इन चोरों को ऊपर लाने के लिए और रखने के लिए सारे पाकिस्तान के इदारों की तबाही होगी। इलेक्शन कमीशन तो अभी डिस्क्रेडिट हो गया। नैब के अंदर अब अपना आदमी रख के तो नैब बिल्कुल डिस्क्रेडिट होगी कि अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। FIA को इन्होंने तबाह करके रख दिया कि वो लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत से मुल्क के लिए केसेस बनाए थे इनके ऊपर, ये शरीफ ख़ानदान के ऊपर, और इनके डरते थे लोग, ब्यूरोक्रेट्स डरते थे, पुलिस वाले इनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन लेते हुए डरते थे। नैब में जा रहे हैं और नैब के अंदर जाके पथराव कर रहे हैं नैब के ऊपर, सिर्फ केसेस से निकलने के लिए। वहाँ FIA की वो हमजा शहबाज जा रहा है FIA के अंदर और धमकियां दे रहा है। वो जो डॉक्टर रिजवान जो हार्ट अटैक से मरे हैं, उनको धमकियां दे रहा है कि तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले। तो इन्होंने इनके खिलाफ इदारे पहले डरते थे, अब आके FIA से इन्होंने जो किया है, एक को हार्ट अटैक हो गया जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक डॉक्टर रिजवान मर चुके हैं, सारे केसेस अपने ख़त्म करवाएंगे। ये कभी भी किसी भी दुनिया के अंदर मुल्जिम काजी नहीं बन सकता। मुल्जिम कैसे जज बन सकता है? वो ऊपर बैठ के अब अपने सारे केसेस, नैब ये ख़त्म, इदारों को, पुलिस वाले जो एक करप्ट आदमी जिसको यहाँ बना दिया है IG पंजाब, इनको लेके आए थे ख़ास तौर पे ये जो दहशत फैलाई है इन्होंने, IG इस्लामाबाद। तो इन लोगों को लाया गया है इसलिए नहीं कि मुल्क की बेहतरी के लिए, इसलिए कि करप्ट सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। एक वो लोग जो 30 साल से इस अपने आप को साबित कर रहे थे करप्ट, जो आज कहते हैं कि जी हो मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, ये 30 साल ये बैठे हुए थे। और मैं एक चीज़ आपको आज मैंने मीडिया पे भी बात की है आप सब के लिए, इस वक्त 2 बहुत बड़े मसले बने हुए हैं आज पाकिस्तान के, एक लोड शेडिंग और दूसरा मसला है पानी का किसानों के लिए।
शोर मचा हुआ है, किसानों का बुरा हाल है। दोनों के लिए हमने हमारे दौर में 50 साल के बाद डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू किए। हमने 10 डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें 3 बड़ी डैम्स है, 2 बड़ी डैम्स है, एक बमन डैम है। वापडा ने हमारे दौर में उनकी क्रेडिट रेटिंग ऐसी थी कि उनको इंटरनेशनल डायरेक्ट सॉवरेन गारंटीज के बगैर उनको लोन मिलते थे। जब से ये आए हैं, और ये बड़े इसके बहुत दूर दराज इसके असरात होंगे पाकिस्तान, जब से ये आए हैं, पहले मूडीज ने इनकी क्रेडिट रेटिंग ख़त्म की, माइनस पे की, और फिर जब से जनरल मुजम्मल गए हैं, जो चेयरमैन वापडा थे, जब से उन्होंने रिज़ाइन किया है, वापडा की क्रेडिट रेटिंग माइनस नेगेटिव में चली गई है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, किसी को भी समझ नहीं आ रही। इसका मतलब कि जो ये हम कोशिश कर रहे थे 50 साल के बाद, एक तो पानी की स्टोरेज करना, क्योंकि वो आगे पानी के बहुत बड़े मसले आ रहे हैं। हमारे पास ज़मीन है कई, लेकिन हमारे पास जो पानी का शॉर्टेजेस आएंगी आगे, उसके लिए पानी की स्टोरेज चाहिए। तो वो डबल कर रहे, हमारी कोशिश थी अगले 7-8 साल में पानी की स्टोरेज डबल हो जाए। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि इनको कर्जे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो पहले बाहर से कर्जे मिल रहे थे डायरेक्टली वापडा को जनरल मुजम्मल के ज़माने में, वो अब ख़त्म हो जाएंगे, वो रुक जाएगा। और कर्जे मिलेंगे तो बहुत महंगे, तो आगे हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है। तो ये तो एक चीज़ हुई है। उसके अलावा जो एक इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी, और मुश्किल से एक बैंकरप्ट इकॉनमी को संभाल के कोरोना के दौर से नेविगेट करके तीसरे साल में 5.6% ग्रोथ रेट, और चौथे साल में 6%, प्रोजेक्टेड 5वें साल में 7% थी, वो इकॉनमी आज सीधी तरफ तेज़ी से नीचे जा रही है। सिर्फ यही नहीं कि महंगाई तो उसका, और कभी पाकिस्तान में इस तरह की महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने किया। मैंने कहा कि 4 रुपए के ऊपर उसने शुरू कर दिया था, पेट्रोल की या डीजल की कीमत बढ़ाई तो उसने महंगाई मार्च शुरू कर दी थी, जिस पे हमने बिल्कुल उसको रोका नहीं। वो लोग भूल गए वो महंगाई मार्च, वो लोगों को वो काम पे टांगने वाली वो चीज़ याद रह गई है सारे उस लंबी मार्च में, जिसमें बड़ा पैसा खर्च किया गया। लेकिन हमारे दौर में आप सोचे 3.5 साल, तब सारी महंगाई, तेल की कीमत ऊपर गई हुई थी, तो हमारे दौर में 55 रुपए हमने 3.5 साल में पेट्रोल महंगा किया, और 50 रुपए डीजल महंगा किया। और इन्होंने 10 दिनों में 60 रुपए पेट्रोल और डीजल पर लीटर महंगा किया। 45% गैस महंगी की, बिजली की कीमत इन्होंने 10 रुपए यूनिट महंगा कर दिया। यानी इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। और इनकी सारी स्टेटमेंट्स देखें, जब से हम आए हैं इन्होंने एक शोर मचाया हुआ था महंगाई। तो जो इन्होंने 2 महीने में किया है, आप जरा देख लें, 3.5 साल और 2 महीने। इसका मतलब कि महंगाई कॉज नहीं था, क्योंकि अगर ये होता तो ये रोकते, ये इतने बड़ी महंगाई ना करते। मकसद कुछ और था, और वो मकसद सामने आपके आ गया कि आते साथ ही इनके मसले थे करप्शन के केसेस के, वो करप्शन केसेस ख़त्म करवाने थे इन्होंने। सो इनका असल मकसद ये था। अमेरिका का मकसद ये था कि वो एक पालतू को ले आए ऊपर, इनके नौकरों को, और वो जो भी IMF कहेगा वो करेंगे, जो भी। अब हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जाके, जब मैं रूस गया था, तो हमने नेगोशिएट कर लिया था रूसियों से कि हमें सस्ता तेल दे, हमें 30%, हमने उनसे बात कर रहे थे कि हमें तेल सस्ता दे। वो नेगोशिएट हो गया था। जब जैसे ही वापस आए, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस वो टेबल कर दी। तो वो जब नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई तो सब कुछ स्लो डाउन हो गया। लेकिन इनका काम था, अगर इनको वाकई महंगाई की फिक्र होती तो इनको फौरी तौर पे वो रूस का जो सस्ता तेल था उसको परसू करना चाहिए था। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कहता जी रूस हमारे पास आके हमें ऑफर दे, यानी तेल की हमें जरूरत है लेकिन रूस को कह रहा है कि हमें आके ऑफर दे। यानी असल में अमेरिका की इजाजत के बगैर ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। अवाम पिस रही है,
हिंदुस्तान 40% कम पे तेल खरीद रहा है आज रूस से, 40% कम। जब हम 60 रुपए बढ़ा रहे थे लीटर, तो हिंदुस्तान 25 रुपए लीटर कम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने रूस से तेल ले रहे थे। तो इनको अगर फिक्र होती है अपने लोगों की, तो इनका सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि वो उसको परसू करते। परसू करने की तो बड़ी दूर की बात है, इनको थोड़ा सा इनके ख्याल में भी आ जाए ना कि इनके जो मास्टर्स बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में, अमेरिका, वो नाराज भी हो जाए तो ये कभी वो आगे कदम नहीं उठाएंगे। इनको कोई फिक्र नहीं अपनी अवाम की। मेरी कंटेंशन ये है कि इनके दोनों के पार्टियों के सरबराह के अरबों डॉलर, रुपए नहीं, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी किसी किस्म का इस कौम के लिए स्टैंड नहीं लेंगे जिधर इनके डॉलर खतरे में आ जाए। इनको खौफ यह है कि अमेरिका अगर नाराज हो गया तो वो इनसे होगा जो आज रूसियों से हो रहा है। जितने रूसी ओलिगार्क्स के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, हर रोज आप सुनते हैं कि इनका जेट ले लिया, इनकी यॉट ले ली, इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये इनको डर लगा हुआ है कि कहीं वो नाराज हो गए तो उनके पैसे फंस जाएंगे। लिहाजा बजाय रूस का तेल लेने के लिए इन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए वो किया जो कि अमेरिका, उन्होंने हुक्म भी नहीं दिया इनको, तो इतना कि वो नाराज ना अमेरिका हो जाए, ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। और मैं बार बार बताता हूं कि 400 ड्रोन अटैक्स किए अमेरिका ने जब ये दोनों सरबराह थे 10 साल में, 2008 से 18 तक 400 ड्रोन अटैक्स किए अमेरिका ने। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आपका एलाय आप पे ड्रोन अटैक्स कर रहा है, आप उनकी जंग भी लड़ रहे हैं, आपके लोग भी उनकी जंग में मर रहे हैं, और आपको ही वो मुल्क में आके ड्रोन अटैक करके लोग मार रहे हैं, और एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला। तो इसीलिए इनको वापस लेके आए हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं वापस आए, ये एक फॉरेन एजेंडा के लिए वापस आए हैं। इनकी किधर खुशियां बनी जब इमरान खान गया? सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनी। आप उनकी मीडिया उठा के देख ले, सबसे ज्यादा वो खुश हुए। और उसके बाद इसराइल के अंदर वो बड़े खुश हुए कि जी ये गया। और वेस्टर्न अखबारों में ज्यादातर मेरे अगेंस्ट वो, यानी उन्होंने वो जब बाद में पब्लिक निकली तो थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन शुरू में उन्होंने भी बड़ा नेगेटिव था। तो मेरा हिंदुस्तान मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता था क्रिकेट की वजह से। तो ये क्या वजह है कि इसकी शहबाज शरीफ से बड़ा खुश हुए? क्योंकि इनको पता है कि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये फॉरेन एजेंडा के तहत चलेंगे। वो एजेंडा जो पाकिस्तान की बेहतरियों के लिए नहीं है, इनके लोगों के लिए, बाहर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। आज आप ये देख लें कि जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये किसको सूट कर रहा है? पाकिस्तानी आवाम को तो नहीं सूट कर रहा। किसको फायदा हो रहा है इससे? जिनका एजेंडा है पाकिस्तान को कमजोर करना, जिनका हमारे दुश्मनों का एजेंडा है कि पाकिस्तान के टुकड़े करना। हिंदुस्तान के टीवी पे आम बैठे होते हैं उनके एनालिस्ट और कह रहे होते हैं बलूचिस्तान को अलहदा करना है। मैंने कई दफा सुना कहते हो कि जी पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए। कौन ये सारी मुसलमान दुनिया में आज आप देखें तो एक मुसलमान मुल्क देख ले जो इराक से शुरू करें और लिबिया से शुरू करें, सीरिया से शुरू करें, सोमालिया, यमन, सारे मुसलमान मुल्कों में देख लें, अफगानिस्तान, सारों के अंदर बाहर के एजेंडा के तहत वो मुल्कों की तबाही है। तो वो जो बाहर की फोर्सेस हैं जो हमारे खैर ख्वाह नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजबूत हो। इनको जो लेके आए हैं वो पाकिस्तान इसलिए नहीं लेके आए कि मुल्क मजबूत हो, इसलिए कि हम गुलाम बने। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है आपके लिए। आप पाकिस्तान की वो पार्टी हैं जो कि आज वाहिद पाकिस्तान की फेडरल पार्टी रह गए। बाकी दो पार्टीज रह गई हैं, इंटीरियर सिंध की और एक रह गई सेंट्रल पंजाब की। आप वो पार्टी है जो कि सारे पाकिस्तान की पार्टी है। आपकी पार्टी मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। ये वो पार्टी है, सिर्फ दो फोर्सेस इस वक्त ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमज़ोर हो, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो जिसलिए ये साजिश थी, दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फौज कमज़ोर हो। और वो जो फोर्सेस हैं जो हम दोनों के अगेंस्ट थी, वो आज बड़े खुश हैं कि ये शहबाज शरीफ आ गया।
تو ہمارے پہ ذمہ داری ہے. یہ جو اگلا فیز ہے اس میں ہم نے آزادی تحریک پہ پورا زور لگانا ہے. میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں. ہم صرف اپنے وکلا سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں. جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے, میں آپ کو ابھی کال دوں گا. بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک احتجاجی پروٹیسٹ کریں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ انشاءاللہ بس میں صرف آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری رکھیں. بس ہم اچھا سنیں, ہم ساروں میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھیں. ہم انشاءاللہ جیسے ہمارا کلیئر ہوتا ہے, ابھی سپریم کورٹ کا سے جو کلیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, جیسے کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا. میں سب کو چاہتا ہوں آپ جتنے بھی ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے اپنے علاقوں میں تیاری کریں, کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہم پالیٹکس کر رہے ہیں. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں. آزادی, ایک مسلمان جب اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میں جب آپ کو ڈیٹ دوں گا آپ کی سب کی تیاری ہونی چاہیے. بس اچھا آخر میں Before you leave, نوراللہ قادری سے وہ مذمتی قرارداد کروانی ہے, وہ بی جے پی کے اس میں. ہاں جی, میں جب ابھی ختم کر رہا ہوں بس قادری صاحب آپ آ کے وہ جو ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے اوپر ایک قرارداد پاس کریں گے. لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. سارا سٹیٹس کو چوروں کا اکٹھا ہو گیا آپ کے خلاف اور عوام آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. اور یہ جو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ کبھی کبھی ملک کی تاریخ میں اس طرح قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک پارٹی کے پیچھے. یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہی وہ پارٹی بنیں گے جو اس ملک کو حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیئرمین صاحب اور پارٹی قیادت کے حکم پہ جو ہندوستان میں جماعتی پارٹی کے ترجمان خاتون نے, بی جے پی کے ترجمان خاتون نے جس انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور حرمت پہ حملہ کر دیا ہے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے نامناسب باتیں کی ہے. پارٹی کا یہ نیشنل کونسل, میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کی محبت جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے یہ رسول اللہ کی حرمت کی وجہ سے ڈالی ہے. پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت کا علم اگر کسی نے مسلم دنیا کے حکمرانوں میں بلند کیا تھا تو وہ عمران خان تھے. آج ہماری حکومت نے جو مذمت پیش کی ہے بالکل رسمی, سرکاری, سطحی اور ظاہری, اس میں نہ جان ہے نہ روح ہے اور نہ اس میں کوئی لگن ہے. پوری دنیا آج ایسے موقع پر پھر عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے. ہم اس کوشش کو جو ہندوستان میں اسلام و فوبیا کے
मुसलसल मुतवातिर सरकारी सतह पर जो वाक़यात हो रहे हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हमले हो रहे, एक जमहूरी हिंदुस्तान के पहचान पर भी एक तप्पड़ है। और वहाँ के मुसलमानों जो करोड़ों के तादाद में है, पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनकी मुँह पे भी एक तप्पड़ है। ये कौंसल, ये इज्तिमा उसकी भरपूर मजम्मत करती है और अपनी जो इम्पोर्टेड नामंजूर एक सरकार है, उस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इसके लिए 4 कदम आगे जाना चाहिए था और अमान और अल-अज़हर के फतवा के मुताबिक हिंदुस्तान के साथ तिजारती और कारोबार का बाइकाट करना चाहिए। आपको ये करारदाद मंजूर है? शुक्रिया जी। आप सबको रिफ्रेशमेंट्स के लिए खुश आमदीद।